Hi, myself Shristi. I'm a 12th grade PCB student and recently मैंने देखा अभी क्लास 10th के बोर्ड्स का रिजल्ट आया है and I saw a lot of people were very disappointed with their grades. I heard a lot of them saying कि उनकी they were expecting that they will score around 80%, 85% and उनके grades जाके 60%, 65%, 70% पे stuck हो गए हैं. It kind of reminded me of the time when I was in class 10th and I was really struggling. The situation was so bad कि जनवरी का टाइम था. It was early January or mid January time. मेरे pre-boards के exams हुए and I scored around 70% and the paper was very easy, by the way. It was not that hard. So I was really disappointed in myself कि what am I doing? I myself had always been the topper of my class. I had always scored 99%, 98%, 100%. In fact, even in class 9th, I scored around 98% and I was highly disappointed with my grades in class 10's pre-board exams. And then after a month, my boards happened, फिर result आता है and I scored 94.2%. Not much, maybe some people will think 94% is just average. For some people, 94% would be very great. So for me it was good because I was really struggling at the starting time. I know one thing for the fact that I could have done way better if I knew these things before the month of January. I'm gonna tell you, it might help you too because it helped me. Also, just to mention, I didn't take any coaching classes, no tuitions, no batches online. It was just me and my YouTube, of course. The thing is, I'm not trying to degrade anyone, but the thing is, my school teachers were definitely not the greatest. They were not supportive. In fact, when my results were out, a teacher called me and he just asked me, how did you do it? I thought you were gonna fail. And I was like, that was really very harsh, by the way. So they were not the most supportive teacher. They were very demotivating. Like, they always used to demotivate me, other people of my class too, of course. So in this situation, I had no one, just me and my YouTube. So I'm gonna be your YouTube big sister now and I hope I really be able to help you. So first things first, when you'll enter class 10th, a lot of people are gonna tell you how hard 10th is. वो तुमको ऐसे एक सीन में डाल देंगे जिसमें तुम्हें ऐसे बैठाएंगे और समझाएंगे कि oh my god, तुम्हारे 10th का पेपर है and तुम पैनिक कर जाओगे. मेरे साथ यही हुआ था. मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे मैथ्स में आई वॉज डूइंग ग्रेट एंड देन पेपर आया एंड द पेपर वॉज उसमें सारे मैंने NCERT प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चंस आउट ऑफ NCERT भी थे. सो आई पैनिक्ड, आई स्टार्टेड पैनिकिंग एंड माई टीचर्स वर लाइक कि यू वोंट बी एबल टू डू इट, तुम ऐसे कैसे कर रही हो. एंड इनफैक्ट उन्होंने मुझसे ये कह दिया कि तुम्हें क्या लगता है कि 11th में तुम पास हो पाओगे, 11th तक तुम जा पाओगे. सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट अफेक्टेड मी एंड दिस थिंग जो टीचर्स बार बार आके मुझको कहते थे कि 10th इज़ वेरी हार्ड, इसे हल्के में मत लो, ज़रूरी नहीं है कि तुमने 9th तक अच्छा परफॉर्म किया था तो तुम 10th में भी अच्छा परफॉर्म करो, दिस इज़ द डाउनफॉल टाइम. जस्ट अगर तुम्हें ऐसा लगता है सो जस्ट रिमूव ऑल दीज बुलशिट्स फ्रॉम योर माइंड. ओके, जस्ट रिमूव ऑल ऑफ इट. लेट मी टेल यू स्ट्रेट, 10th इज़ वेरी ईजी. 10th इज़ सो ईजी. लाइक मैंने खुद एक मंथ में प्रिपेयर करके इतना किया. तुम लास्ट के एक मंथ में सीरियसली बैठ जाओ. बाय द वे, सिर्फ सीरियसली पेपर चल रहा है तुम्हारा, तुम सीरियसली बैठो, क्लास लो. हो सकता है तुम मैथ्स एंड साइंस में एकदम 99, 98 ऐसे ना ला पाओ, बट साइंस के एग्ज़ाम में 90%, 95% के अबव जाना भी हार्ड नहीं है इफ़ यू स्टार्टेड स्टडिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर, इन द मंथ ऑफ जनवरी. एंड मैथ्स भी बहुत ईजी हो जाती है इफ़ यू आर स्टार्टिंग इट आफ्टर the month of October, November is time, and you'll be able to score above 90 even after this. But you have to sit and study. And no, 10th is not something that requires you to study 18 hours, 14 hours, 13 hours, 12 hours. If you're studying for like 2 hours, 3 hours, but you're studying daily, you went to school, you came back, and maybe your school teachers would be nice, they would be supportive. So what you have to do is just revise what you were taught and solve questions. That is it. Like, my first mistake was definitely that I
panicked. I let those things, those demotivating comments get to my head. So you don't have to do that. Don't listen to people telling you that you can't. You can, and then it's very easy. Just remove all this fear you have inside you. It's nothing. It's very easy. It's very easy, okay? It's very easy. And second mistake that I did was I avoided solving questions because I was scared. Yeah, I thought there were various reasons why I didn't solve papers. I didn't solve the PYQs. First reason was because I was scared that I wouldn't be able to do it. Second was because I thought I need to, I kept revising the theories. I kept reading my notes again and again and again. That doesn't work. Reading your notes again and again won't work. You won't learn anything new from it. After one revision, you should sit to study for solving questions. That's one of the most important things that I avoided, and you should not. And the third mistake I did was to waste all the time I spent in the school hours. मुझे ऐसा लगता था कि मैंने 8 घंटे स्कूल में दे दिए हैं तो मीन्स कि 8 घंटे बर्बाद. अगर मैं जा रही हूँ स्कूल एंड मैं स्कूल में जाके इतना टाइम स्कूल में स्पेंड करके इतने बजे आ रही हूँ एंड आई विल बी टायर्ड, तो मेरे दिन का इतना टाइम तो जा ही जा रहा है. That was not very great. See, try to cover as much as syllabus that you can in your school, okay? हो सकता है तुम्हारी टीचर्स सपोर्टिव हों, हो सकता है तुम्हारी टीचर्स सच में अच्छा पढ़ाते हो, तुम्हें उनका पढ़ाया समझ हो सकता है तुम्हें उनका पढ़ाया समझ आता हो. और अगर तुम्हें उनका पढ़ाया समझ आता है तो यू नीड नॉट टू गो होम एंड देन सेम चीज़ जो तुमने स्कूल में पढ़ी उसको तुम घर आके लेक्चर्स देख के पढ़ रहे हो. डोंट डू दैट. दैट्स जस्ट स्टूपिड, ओके? एंड अगर तुम्हें स्कूल में नहीं समझ आता है तो ट्राई कि तुम नोट्स बनाने वाला काम जो हो, तुम्हारी जो फेयर नोटबुक बननी होगी जिससे तुम्हें इंटरनल मार्क्स मिलेंगे या कोई प्रोजेक्ट का काम होगा, क्लास में पीछे बैठ जाओ उन टीचर की क्लास में जिनमें तुम्हें कुछ समझ नहीं आता. एक्चुअली ट्राई टू बी इंटरेक्टिव इन द क्लास, ओके? बट इफ़ यू फील लाइक तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिट ऑन द बैक सीट, ओके? एंड देन स्टार्ट कंप्लीटिंग योर नोट्स. मेरी टीचर्स तो मुझे नोट्स तक नहीं कंप्लीट करने देते थे. आई यूज्ड टू डू इट लाइक ऐसे छुप छुप के. बट यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स एंड हो सकता है तुम कर लो. हो सकता है 1 दिन 2 दिन तुम्हें डांट पड़े, मार पड़े, मुझे भी पड़ी है, बट हो जाएगा, ओके? यू हैव टू कंप्लीट द नोट्स. फिर घर आके अगर तुम्हें टॉपिक्स जिस टीचर ने पढ़ाया तुम्हें समझ नहीं आया तो घर आके लेक्चर देखो. मेरी थर्ड मिस्टेक यही थी कि मैंने स्कूल का सारा टाइम वेस्ट किया. मैंने उसमें कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया. मैं स्कूल जाती थी, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ स्टार्टिंग के टाइम में मैंने सिर्फ और सिर्फ फ़न किया. मुझे टीचर्स क्या पढ़ाते थे कुछ समझ नहीं आता था. मैं अटेंटिव होकर लेक्चर्स लेती ज़रूर थी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो पढ़ाते थे उससे पेपर में कुछ आता ही नहीं था. लाइक सीरियसली बोर्ड्स एग्ज़ाम के हिसाब से वो कुछ नहीं पढ़ाते थे. तो सम स्पेसिफिक टीचर्स से पढ़ना, तो आई वॉज लाइक, it was so stupid, okay? It was so stupid, and I used to listen to them attentively. I don't think I have gained anything from that. I could have spent those hours working on my notes, so घर जाके फिर लास्ट में मुझे इतना रश नहीं करना पड़ता. तो don't waste the hours you go to school, and अगर हो सके तो 75% of attendance mandatory होती है, and हो सके तो जिस समय तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बैकलॉग बन रहे हैं, टेक अ डे ऑफ, 2 दिन ऑफ. लाइक अगर तुम्हारे सेकेंड सैटरडे को छुट्टी रहती है, देन संडे को छुट्टी रहती है, तो मंडे को या फिर फ्राइडे को एक दिन तुम ऑफ ले लो. जस्ट टेक अ डे ऑफ. उसके बाद तुम्हारे पास ये 3 दिन लगातार होंगे, एंड इन 3 दिन में यू जस्ट हैव टू सिट. चाहे तुम्हें उन 3 दिन में अगर तुम्हारा बैकलॉग बन गया तुम्हें कितने भी टाइम लगे, जस्ट हैव टू कंप्लीट द बैकलॉग. डोंट लेट द बैकलॉग कंज्यूम यू. That's the fourth thing I did. My fourth mistake. I let that backlog completely get onto my head, and फिर last में I panicked कि oh my god, अब मैं कैसे करूँगी? So it was bad. So my fifth mistake was that I was trying to follow a lot of resources. See, there is this thing कि तुम्हें मिनिमम रिसोर्सेज में से मैक्सिमम प्रैक्टिस, मैक्सिमम रिविजन करना है. अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम इस टीचर से भी पढ़ लो, इस टीचर से भी पढ़ लो, इस टीचर से भी पढ़ लो और सबका पढ़ के तुम
कर लोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने यही किया था एंड इस वजह से मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो ठीक था, मैथ्स में आई डिड दिस। मैथ्स में एट फर्स्ट आई वाज फॉलोइंग ऋतिक सर एंड आई वाज डूइंग रियली ग्रेट इन मैथ्स, बट जब मेरे मैथ्स में ये सारा बैकलॉग बनने लगा, लाइक मैंने मैथ्स में एक्चुअली सिलेबस पहले कंप्लीट कर लिया लेकिन मुझसे क्वेश्चंस हो नहीं रहे थे, तो फिर आई जस्ट स्टॉप्ड सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने छोड़ दिया मैंने। तो मैंने जो पढ़ा था सब भूल गई, तो लास्ट में मुझे सब फिर से पढ़ना पड़ा, जिसके लिए मैंने अलग अलग तरीके से रिसोर्सेज देखना शुरू कर दिए, इधर देखना उधर देखना, विच वॉज वेरी बैड एंड दिस इज़ माई फिफ्थ मिस्टेक कि मैंने अपने रिसोर्सेज को, अपने मेंटर को ट्रस्ट नहीं किया। इट वॉज वेरी बैड, डोंट डू दिस, जस्ट ट्रस्ट वन टीचर, ओके। कोई भी एक टीचर चूज़ करो, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑन यूट्यूब, शोभित भैया हैं, ऋतिक सर हैं, सो यू कैन जस्ट चूज anyone and trust them the entire journey. Don't switch in between. तुमने पहला लेक्चर देखा, दूसरा लेक्चर देखा, हो सकता है तुम्हें कुछ ना समझ आ रहा हो एक आध टॉपिक, तो उसे इधर उधर से देख लो, बट don't keep switching between your resources, don't keep switching between your teachers, your mentors, because that part is very necessary, okay. मैंने बार बार स्विच किया था, जैसे मेरे मैथ्स में स्कोर्स बहुत बेकार आए, बहुत बेकार। अगर मैं जिस पेस से मैंने क्लास 10 की शुरुआत की थी मैथ्स में, उसी पेस से मैंने क्लास 10 को मेंटेन करके रखा होता टिल द एंड, तो मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया होता मैथ्स में। एंड हियर कम्स माय सिक्स्थ मिस्टेक, कंसिस्टेंसी। आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट। मेरा मन करता था तो मैं एक दिन में बैठ के 17 घंटे 18 घंटे पढ़ जाती थी, फिर मेरा मन करता था तो आगे एक हफ्ता मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। सो दैट इज़ बैड, यू नॉट सपोज टू डू दैट। तुम 1 घंटा पढ़ो, तुम डेली पढ़ो एंड दैट वुड बी इनफ। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि अगर तुम मिनिमम, स्कूल तो जाना ही होगा ऑफ कोर्स, स्कूल से आने के बाद तुम 1 से 2 घंटा मिनिमम दे रहे हो, डेली दे रहे हो, लेकिन ओके 1 से 2 घंटा मिनिमम दे रहे हो, और मैथ्स डेली प्रैक्टिस करो। 10 क्वेश्चन लगाओ, 5 क्वेश्चन लगाओ, पर डेली लगाओ, प्रैक्टिस मत छोड़ो। बिकॉज मैंने 1 महीना प्रैक्टिस छोड़ दी थी और मैं सब भूल गई थी। सेम क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लिया, दैट्स नॉट इनफ। एक क्वेश्चन लिया तुमने, सॉल्व इट 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स, जब तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि ये क्वेश्चन तो अब मैं ऐसे देख के बता सकता हूँ कि इसका क्या आंसर है, तो उस समय जस्ट लीव इट ना, यू कैन लीव इट। मतलब 2-4 महीने बाद तुम फिर कभी मन करे तो रिविजन करना, तुम ऑलरेडी लगा लोगे, यू वोंट स्ट्रगल विद इट। सो जस्ट you have to make a strategy. You don't have to give hours into it. You have to make a proper strategy for it. So that was my mistake कि मैं consistent नहीं थी। And please be consistent, please. इसके पहले कि मैंने तुम्हें जो भी टिप्स दिए, those tips won't work अगर तुम consistently होके पढ़ ही नहीं रहे हो तो, because consistency is the key. If you're not consistent, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। बोर्ड्स तो फिर भी कुछ नहीं है। So yeah, that was the 6 mistakes that I did, and I really hope it would help you. And I would say don't panic. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि maths is not for you या science is not for you, it's okay. Maths and science are the sort of subjects जो सबके लिए नहीं होते। लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं कभी कभी, और कुछ लोगों से नहीं होते उतने एफर्ट्स। मतलब why are you wasting your efforts and skills or something that is just not meant for you? Maths is something that is not meant for everybody, okay? So अगर तुमसे क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं या तुमसे मैथ्स नहीं हो रही है, सो 1-2 सब्जेक्ट्स तो वैसे भी मैटर नहीं करते। परसेंटेज में टॉप 5 कैलकुलेट होता है, टॉप 5 कैलकुलेट होता है, एंड कोई भी एक सब्जेक्ट वैसे भी एक्सक्लूड हो जाता है। तो इफ़ देयर इज़ वन सब्जेक्ट फॉर यू जो कि वीक है तुम्हारा, सो जस्ट लीव इट। मतलब इतना पढ़ो कि तुम्हें उस पर कंपार्टमेंट ना देना पड़े, इतना अच्छे से पढ़ लो, कोशिश करते रहो कि हाँ आई कैन इम्प्रूव। बट अगर तुम ये सोच रहे हो कि अगर तुम अपनी पढ़ाई में से इफ़ यू आर स्टडिंग, तो उस 100% एफर्ट्स का 60% तुम ऐसे सब्जेक्ट में डाल रहे हो जिसमें तुम्हें रिजल्ट कम मिल रहा है, और 40% तुम ऐसे में डाल रहे हो जिससे तुम्हारे रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन बिकॉज तुम उनमें एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। Try to divide your time on the basis कि तुम्हारा रिजल्ट कितना आ सकता है। इनपुट उसमें ज़्यादा दो जिसमें आउटपुट ज़्यादा आने के चांसेस हों,
फालतू में अगर तुम इतने एफर्ट्स डालोगे तो फिर तुम खुद डिसअपॉइंटेड होगे। पहले तुम एफर्ट्स डालोगे, फिर तुम्हें लगेगा कि ओ माय गॉड मुझसे तो हो नहीं रहा है, मैं तो कोशिश भी कर रही हूँ। मैथ्स इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीबडी, ओके, इट्स नॉट मेंट फॉर एवरीबडी, दैट्स इट। एंड इफ़ यू नीड हेल्प विद द टीचर्स बाय द वे, आई वुड रियली हेल्प यू। मैंने पर्सनली मैथ्स ऋतिक मिश्रा से पढ़ी थी, ही इज़ वेरी ग्रेट। स्टार्टिंग में आई वॉज डूइंग वेरी वेरी गुड इन मैथ्स, एंड आई एम नॉट अ मैथ्स काइंड ऑफ पर्सन. Also, if you ask me, if you need help with the teachers जिनको तुम श्योर नहीं हो कि तुम्हें किससे पढ़ना चाहिए किससे नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं पर्सनली अगर तुम्हें रिकमेंड करूँगी तो मैथ्स के लिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ऋतिक सर. शोभित सर इज़ ऑल्सो गुड. मैंने 9th में आई थिंक उनसे ही पढ़ी थी लास्ट में जब मेरा बैकलॉग बन गया था, एंड मुझे बहुत अच्छे से समझ आया था. शोभित भाई इज़ वेरी ग्रेट. और मैंने 10th में ऋतिक सर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, यू नो, आई लर्न हाउ टू डू मैथ्स. मतलब सिलेबस कवर करना इज़ अदर थिंग. आई realize that maths can be fun too if you're doing it the right way. So that's one thing. I would always be grateful for Hrithik sir. And for science I would say प्रशांत भैया हैं ही. इसके अलावा PW के एक सर हैं, I think his name is Akshay Tyagi. For numericals of physics I used to watch his videos and I feel like he's a very great teacher. बाकी तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए प्रशांत सर इज़ परफेक्ट, एंड ज़ूलॉजी के लिए समृद्धि मैम. ऑफ कोर्स ज़ूलॉजी बोला मैंने, बायोलॉजी के लिए समृद्धि मैम. एंड इसके अलावा SST के लिए दिग्राज सर लाइक अमेजिंग, यू नो, ही इज़ परफेक्ट. यू डोंट हैव टू गो फॉर एनीबडी एल्स. वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर SST अगर तुम NCERT ही पढ़ ले रहे हो ना, सो दैट वुड बी इनफ. You have to do nothing else. Just take the NCERT, learn things. Will be the things that are important. Don't go for learning everything. Like some of those dates, some of those things are just pure bullshit. Those things don't even matter. Okay, so don't. And English, it's dear sir, and I would say magnet brains for Hindi. And मेरे में कंप्यूटर एप्लीकेशंस लगे थे. लोग के लिए ITs लगते हैं, मुझे IT AI दोज थिंग्स, उनके लेक्चर्स तो मिल जाते हैं ऑनलाइन. एप्लीकेशंस के लेक्चर्स मुझे पर्सनली मिलते ही नहीं थे पूरे 10th में. एंड मेरे स्कूल में कंप्यूटर का टीचर ही नहीं था 10th में. सो मैंने तो बुक से ही पढ़ा था. आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट यू शुड डू विथ योर कंप्यूटर, बट दैट्स व्हाट आई कैन रिकमेंड. ओके, सो डोंट वरी, स्टडी प्रॉपरली, यू आर गोना डू वेरी वेरी ग्रेट. ओके, बस ये सोच के पढ़ना कि 11th में आने के बाद यू विल नीड दोज कॉन्सेप्ट्स. मैथ्स एंड साइंस तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर तुमको आगे आके PCB लेनी है, PCM लेना है, PCM भी मत लेना प्लीज़. तो यू हैव टू लाइक जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. मतलब इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने कोर कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये तुम सिर्फ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ सकते. तो इन्हें तो कंसिस्टेंटली करना, डेली करना. Like every day, study maths and science every day. ठीक है, do it every day. इसके अलावा अगर तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, so you just don't skip SST. मतलब just don't skip any chapter, nothing. Okay, that's all I would recommend from my side, and thank you so much for watching.